I, on behalf of All India Muslim Fasla Board, welcomes you all here in Madrasa Sabitul Irshad. As you know that All India Muslim Fasla Board, which is an apex body of Indian Muslim, has completed its 29th convention yesterday. This convention was very successfully conducted here, and we are very grateful to our reception committee, the Amir Shariat of Jamia Sabitul Irshad and their entire team. The way they have made the preparation, that it has allowed us to complete the meeting in a very peaceful and comfortable manner. As you know that every 3 years, Muslim Fasla Board re-elect their office bearers, their president, their working committee, and also the president, in consultation with the working committee, appoint the office bearers. So Alhamdulillah, once again, we have re-elected our renowned Islamic scholar, Maulana Khalid Saifullah Rahmani, the president of All India Muslim Fasla Board. And we filled the vacancies in founder members as well as term members. You know that All India Muslim Fasla Board is represented from the entire country, the people from entire country. Almost all prominent Muslim organizations, all school of thoughts, all big Islamic institutions are represented in All India Muslim Fasla Board. Although the entire membership limit is 251, and in this 251, we try to accumulate or to try to get assemble the people from Kashmir to Kanyakumari, Gujarat to Assam. And this meeting, we also discuss the previous issues which were decided and what was the outcome. The report was presented, and it is discussed by the people, by the participants. Apart from members, we also invite some prominent people from all over the country. So they were the special invitees. So now with me today, our respected General Secretary, Maulana Shah Muhammad Fazlur Rahim Mujaddidi Sahab, who is sitting next to me. He was again reappointed as a General Secretary of All India Muslim Fasla Board. He is with me. To my left is Mahtaram Akbar Ali Sahab, is Secretary of Jamaat, and he will translate in Kannada language, whatever we say. And to the right side of Fazlur Rahim Mujaddidi Sahab is Dr. Mujahid Jamil, a prominent leader from Karnataka, from Bangalore. Asim Afroz Sahab. And Asim Afroz Sahab, member of All India Muslim Fasla Board.
Sulaiman Khan, co-convener of the month. and Sulaiman Khan Sahab is co-convener from Karnataka. So, yesterday we discussed some very important issues confronting the Muslim community in India. The most important issue, which was presently very well discussed throughout the country as well as in JPC and in Parliament, that is Waqf Amendment Bill 2024. You know, there are many misgivings in the media and social media about the Waqf properties. This has been said that Waqf board, wherever once they start claiming that this is the Waqf property. Secondly, it has been said that the Congress party has formed the Waqf board to appease the Muslim community. I want to make it clear, and it has been said that there are many Muslim Waqf properties are about, according to the government announcement, that after railway and military, third largest property is the Waqf property. This is incorrect. Only in Tamil Nadu and Andhra Pradesh, the Hindu endowments have more properties than the Waqf properties. Secondly, whatever protection and provisions available to the Waqf, Muslim Waqf, the similar protections or similar provisions, they are available to Hindu endowments and the Sikh endowments and the Christian endowments. Nothing special to Muslim Waqf. So, you know, the first Waqf Act was formed in 1923 by the British government. Then after India became independent, the first Waqf Act was adopted or formed passed by the Indian Parliament in 1954. Since then, till 1995 and till 2013, whatever amendments were brought in the Parliament, जितनी amendments लाई गई हैं वक्त में, तो उसमें लाने से पहले there were consultation with the stakeholders, that is Muslims, and finally when 2013 में जो अमेंडमेंट आया था, उस मौके पर सचर कमेटी की रिकमेंडेशन को सामने रखा गया और उसके बाद हमारे साथ मुसलमानों की तंजीमों के साथ वाइड स्केल कंसल्टेशन हुए. This is the first time a bill was brought in the parliament without any consultation with any Muslim organization. ये कभी नहीं हुआ है कि जिसके लिए बिल लाया जा रहा है उससे कोई कंसल्टेशन नहीं दी है. और उसके बाद जब इस पे हंगामा हुआ पार्लियामेंट में, then the Lok Sabha Speaker formed has given this matter to JPC, Joint Parliamentary Committee. Joint Parliamentary Committee ने जब लोगों से ओपिनियन इनवाइट किया, again they play mischief. Instead of inviting the suggestion from the stakeholders, they invited the suggestion from the entire citizens of the country, from all the citizens of the country. That was the general appeal. Anyway, All India Muslim Personal Board asked the Muslim community to submit their opinions through email
and we have supplied a QR code to them. And on the request of All India Muslim Personal Board, around 3 crore 66 lakh Muslims have submitted their emails, have given their suggestions to the JPC. And other people also submitted their opinions. So, इसके बाद then JPC invited people अपनी सजेशन देने के लिए JPC ने लोगों को बुलाया. तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने भी JPC के पास जाकर अपने रिकमेंडेशंस और अपना ऑब्जेक्शन जो भी है इस बिल के ऊपर में वो पेश किया. और 211 पेज का एक डॉक्यूमेंट भी सबमिट किया कि ये बिल जो लाया गया वो किस तरह से वक्फ की प्रॉपर्टीज को तबाह करने वाला है. हाउ द बिल विल यूसर्व द वक्फ प्रॉपर्टीज. हमें पूरे दलाइल दिए और उसके बाद JPC के सवालों का जवाब देती है. लेकिन द वे द JPC इज मूविंग अहेड, कि बजाय इसके कि वो सिर्फ स्टैक होल्डर से कंसल्टेशन करते हैं, वो मिनिस्ट्री से कंसल्टेशन कर रही है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन कर रही है, रिलेवेंट लोगों से कंसल्टेशन कर रही है, दोज हू आर अपोज्ड टू द वक्फ उनसे कंसल्टेशन कर रही है. तो जाहिर बात है जिस तरह से ये JPC कोशिश कर रही है, एंड इवन द अपोजिशन मेंबर्स इन द JPC दे आर ऑब्जेक्टिंग टू इट, दे हैव नॉट बीन टेकन इनटू कॉन्फ्रेंस. तो हमको लग नहीं रहा है कि JPC कोई ईमानदारी के साथ कोई काम करने वाली है. एनीवे, ये हम एक बार फिर वादे कर देना चाहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज है वक्फ की, वो किसी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है. वो हमारे बुजुर्गों ने अपनी ओन प्रॉपर्टी, अपनी जाति मिल्कियत की जमीनों को वक्फ किया है, मसाजिद के लिए, ग्रेवयार्ड्स के लिए, ईदगाहों के लिए, खानकाहों के लिए, दरगाहों के लिए और चैरिटेबल पर्पस के लिए. तो ये जो सिनेरियो और ये जो सीन क्रिएट किया जा रहा है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी खड़ा की गई, बिल्कुल गलत है. तो इस बिल में बहुत सारी ऐसी चीजें लाई गई है अभी तरमीम बिल में, जो वक्फ की प्रॉपर्टीज को अगर ये खुदा न खास्ता पार्लियामेंट से पास हो गया तो ये बहुत बड़े प्रॉब्लम क्रिएट करेगा थ्रू आउट द कंट्री. इसलिए हम अभी भी समझते हैं द गुड सेंस विल प्रिवेल एंड द JPC विल गिव ए करेक्ट रिपोर्ट, कन्वे our arguments or our opinions to the parliament, and how the entire Muslim community has rejected the bill. तो पहली बात तो ये, तो इस कन्वेंशन में इस मसले पर भी बात हुई है कि अगर इन तमाम कोशिशों के बावजूद, in spite of all our efforts, in spite of all our oppositions, if the bill is passed without any amendments, then the Muslims will be compelled to take all the possible measures within the limits of the Constitution of India, within the framework of the Constitution of India. They will take all legal, constitutional and democratic. And to begin with, we have decided that
the entire leadership of All India Muslim Personal Law, Board, the office bearers of the All India Muslim Personal Law, Board, and office bearers of all India Muslim organizations will sit in protest before the parliament. And we have appealed to all the state Muslim leadership of the Muslim organizations to have a sit-in dharna at respective assemblies. This is the first step. Then other steps will be taken. ये बात वक्फ से मुताल्लिक है। दूसरा इशू जो हमारे यहाँ मेरे बहस आया, वो इशू है यूनिफॉर्म सिविल कोड। हम समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बोगी जो है वो खामखा हर बार छेड़ी जाती है, कोई जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का इशू आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिस्सा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो चीजें होती हैं वो दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट। बहुत सारी और बातें कही गई डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर, लेकिन यहां ये कहा जाता है कि साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। एक ऐसे मुल्क में जहां पे इतने रीति रिवाज है, we have so many culture, we have different religions, we have different traditions, उन सबको आप एक कानून में कैसे बांध सकते हैं? शादी ब्याह कल्चर हर एक का अलग अलग होता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसी डाइवर्स सोसाइटी के लिए जो इंडिया है, ये नाइदर डिजायरेबल नॉर एक्सेप्टेबल। सेम वाज द कंक्लूजन ऑफ 22nd लॉ कमीशन। चौहान साहब जो उसके चेयरमैन थे, उन्होंने ये बात कही थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड is not desirable at this stage. At least for 10 years we should not think about uniform civil code. हिंदुस्तानी मुसलमान ये बात बार बार कह चुके हैं कि हमारा कानून शरीयत Muslim personal law is derived from Quran and Sunnah. No Muslim can go against it. शादी ब्याह इनहेरिटेंस everything is defined in Quran and Sunnah. तो हम उसके खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में एक और बात मैं आप सामने रखना चाहता हूं। जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का इशू सामने आता है तो ऐसा माना जाता है कि जैसे ये सिर्फ मुसलमानों का इशू है, बाकी लोगों को कोई इशू नहीं है। तो पिछले साल जुलाई में हमने दिल्ली में एक राउंड टेबल मीटिंग की थी, जिसमें प्रोमिनेंट सिख लीडर्स फ्रॉम अकाल तख्त, फ्रॉम अकाली दल, prominent Sikh leader from Sikh Personal Law Board, prominent leaders, archbishops of Delhi and other Christian religious leaders, prominent Bose leaders, Dalit leaders, tribal leaders, MPs and MLAs, वो सब वहां मौजूद थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर ये बात कही, इंडिया जैसी डाइवर्स सोसाइटी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नॉट एक्सेप्टेबल। और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का इशू जो है वो कन्फ्रंट करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 26 से, आर्टिकल 19 से, आर्टिकल 25 से। तो ये अगर कोई, अच्छा दूसरी बात ये कि अगर आप समझते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान के अंदर, इफ यू थिंक दैट देयर आर पीपल हु डोंट वांट टू बी गवर्न्ड बाय देयर रिलीजन, देन देयर इज ए ऑलरेडी ऑप्शनल सिविल कोड इज ऑलरेडी अवेलेबल टू देम, दैट इज स्पेशल मैरिज एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट, ये मौजूद है उनके लिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्या है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का इशू लाया ही जाता है मुसलमानों को डिस्टर्ब करने।
लेकिन अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा मसला लाया जाएगा तो इस बार वो सिर्फ मुसलमानों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बात कि ये पूरी सिविल सोसाइटी को डिस्टर्ब करेगा, ये क्रिश्चियंस को डिस्टर्ब करेगा, ये सिखों को डिस्टर्ब करेगा। ये जो वन नेशन वन लॉ वाला जो कंसेप्ट बार बार प्राइम मिनिस्टर बताते हैं, उससे एक बात ये जा रही है लोगों के जहनो दिमाग में कि मनुस्मृति को लागू करने की कोशिश की जा रही है। तो हर आदमी इसके खिलाफ आवाज उठाएगा। एक पीसफुल कंट्री के अंदर स्टेट खुद लॉलेसनेस पैदा करना चाहे तो उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे? हाउ इसको हाउ इट विल बी जस्टिफाइड। दूसरी बात यह कि हमने कल ये तय किया है, जब ये उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल लाया गया और फिर कानून बन गया, वो उस वक्त हमने अपोज किया था। और ये बात हम फिर एक बात कहना चाहते हैं कि किसी स्टेट को ये हक ही नहीं है कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का लाने का जब भी कोई मौका होता है तो वो सिर्फ सेंटर ला सकता है, स्टेट नहीं ला सकती। हाउ कैन इट बी यूनिफॉर्म इफ इट इज इनेक्टेड इन ए स्टेट? बहरहाल हमने कल ये तय किया है कि हम एक PIL के जरिए से वी आर गोइंग टू चैलेंज उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्ट इन नैनीताल हाई कोर्ट। उसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है, मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट मंथ के अंदर हम उसको चैलेंज। तीसरा इशू, आप जानते हैं कि हमारे देश में जब बाबरी मस्जिद की और राम मंदिर की तहरीक इसको चलाई जा रही थी तो 1991 में एक वर्शिप प्लेसेस एक्ट बनाया गया था पार्लियामेंट से, जिसमें यह बात कही गई थी कि बाबरी मस्जिद के बाद अब कोई नया डिस्प्यूट इस मुल्क में नहीं पैदा। 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को जिस इबादत गाह की, जिस वर्शिप प्लेस की, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, टेंपल हो, चर्च हो, जो पोजीशन थी वो अला ही बाकी रहेगी, एज इट इज बाकी रहेगी, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। और जब बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, उस जजमेंट में इस एक्ट को रिट्रेट किया था। सुप्रीम कोर्ट, अपेक्स कोर्ट हैज रिट्रेटेड दिस 1991 वर्शिप प्लेसेस एक्ट and said now no other dispute will be entertained. Unfortunately, every now and then from different states we are regularly watching the news, listening to the news that people are claiming that this mosque is the first, just वो मंदिर है, ये मंदिर है, ये फला का मंदिर है। पहले ज्ञान वापी मस्जिद के साथ हुआ, फिर मथुरा की ईदगाह के साथ हुआ, फिर भोजशाला की मस्जिद के साथ हुआ, फिर टीले वाली मस्जिद पे क्लेम शुरू कर दिया, फिर अब रिसेंटली संभल पे हो गया, जाओ मस्जिद संभल। तो सवाल ये पैदा होता है कि वर्शिप प्लेसेस एक्ट की जो रेलेवेंस है वो खत्म हो गई है। दिस इज नॉट एक्ट इनेक्टेड बाय एनी स्टेट, दिस इज एक्ट व्हिच हैज बीन इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से बनाया हुआ कानून की अवहेलना हो रही है पूरे देश के अंदर। सुप्रीम कोर्ट से हम गुहार लगा रहे हैं बार बार कि आप रोकिए लोअर कोर्ट को, आप रोकिए हाई कोर्ट को, लेकिन कोई बात सुनाई नहीं दे रही। तो ये अगर सिलसिला शुरू हो जाएगा कि एक के बाद एक मस्जिद, देखिए हिस्टोरिकल मस्जिदें हैं, और खुद बाबरी मस्जिद के सिलसिले में ये जो क्लेम किया गया था कि किसी मंदिर को तोड़ के बनाया गया था बाबरी मस्जिद, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है 2019 में, उसमें उसने बहुत कैटेगोरिकली ये बात कही है
we did not get any evidence which suggests that Babri Masjid was erected by demolishing a mosque, a मंदिर। किसी मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, ऐसा हमारे को कोई तत्व नहीं मिला, कोई एविडेंस नहीं मिला। तो अब ये जो सर्वे करवाया जा रहा है, खुदाई करवाई जा रही है, जानने के लिए नीचे क्या चीज थी। आप मुझे बताइए कि 1000 साल पहले, 10,000 साल पहले कोई चीज कहीं थी तो उसकी क्या रिलेवेंस है आज के तारीख में। तो ये जो सिलसिला चल पड़ा है, ये अगर नहीं रुकेगा, ये पूरे मुल्क में लॉलेसनेस पैदा कर देगा। हमें अंदेशा है इस बात का। ये जो कल हुआ है संबंध में, बहुत गलत, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। ये सिर्फ 23, ये वहां के एसपी सिटी का मैंने अभी ऑडियो देखा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 3 से 4 सेकंड तक के पत्थर डले थे, पत्थरबाजी हुई थी जब वहां पे सर्वे करने की टीम आई तो, और उसको गोली चला दिया आपने, 2 लोग मर गए, लाठीचार्ज कर दिया उन लोगों पर। क्या ये प्रोटेस्ट करने का हक नहीं है लोगों को, इसे डेमोक्रेसी के अंदर अपनी बात कहने का? डेमोक्रेसी के अंदर अपनी बात रखने का हक हमको अधिकार हासिल है। हाँ, अगर कोई हाथ में कोई ऐसा करता है, पीसफुल नहीं होता है, वायलेंट हो जाता है, तो आप उसको रोकने के तरीके से रोकिए ना, गोली चला देंगे आप उठाकर। और आप खुद कह रहे हैं कि 3 से 4 सेकंड तक के लोगों ने पत्थरबाजी की। दिस इज द वर्जन, पुलिस वर्जन है। आप पुलिस वर्जन के बारे में आप खुद जान सकते हैं कितना सही और कितना गलत होता है। अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए पुलिस हमेशा इस तरह के दावे करती है, लेकिन उनका दावा ये है कि 2 से 3 सेकंड पत्थर चलाए गए, आपने उठा के गोली चला दी, 2 लोगों को खत्म कर दिया। ये तो अजीबोगरीब सिचुएशन हमारे मुल्क में पैदा हो रही है। तो ये अगर सिलसिला चलता रहेगा मसाजिद के बारे में, तो हम समझते हैं कि शायद इसके बाद बहुत सारी चीजें पूरे मुल्क में प्रॉब्लम पैदा होगी। आप क्या हो रहा है कर्नाटक के अंदर? तो ये सॉरी एक और चीज कल हमारे यहाँ जेर बहस आई है, वो ये थी कि हमारे एक इंटरनेशनल इशू है, पिछले 1 साल से गाजा में ब्लडशेड हो रहा है। दुनिया का सबसे बदतरीन हादसा है। एक तरफ इसराइल है, अमेरिका है, मगरबी ताकतें हैं, एक आबादी के ऊपर बम्बार्डमेंट हो रहा है, हॉस्पिटल खत्म हो गए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तबाह कर दिए गए, और तकरीबन 45,000 लोग अब तक शहीद हो चुके हैं, जिसमें 2/3 विमेन एंड चिल्ड्रन। वैसे भी वो पहले से एक ओपन जेल थी, लेकिन जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ है 1 साल से 13-14 महीने हो रहे हैं, पानी की किल्लत है, ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं पहुंचने दी जा रही है, चीजें ब्लॉक कर दी गई है, लोग भूख से मर रहे हैं। ये कौन सी जंग है भाई? ये जंग नहीं है, ये जेनोसाइड है। हमारा देश जो है वो ये कहता रहा है, और अभी तक उसका स्टैंड यही है कि हम इस मसले का पीसफुल सॉल्यूशन चाहते हैं। वी फेवर 2 स्टेट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्राइसिस। फलस्तीनियन को भी यह हासिल है, हालांकि आप जानते हैं कि वो पूरी जमीन पे इसराइल का कब्जा जो है वो नाजायज है। इसराइल इज ए ऑक्युपाइड कंट्री। 1948 से पहले का इस तरह का नाम कोई कंट्री था ही नहीं वहां पे। लेकिन आज सूरत हाल ये कि जो असल बाशिंदे थे उस जगह के, वो खदेड़ते 2 सेंट्रल जेल, 2 जेलों के अंदर बंद कर दिए गए हैं। एक है वेस्ट बैंक और दूसरा है गाजा।
तो ये जो ब्लडशेड हो रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं, तबाह किए जा रहे हैं, पूरी पूरी आबादी खत्म कर दी गई है, पूरा पूरा इलाका खंडर में डेजर्ट में तब्दील हो गया है, उसको कोई आवाज नहीं उठने दिया। अगर आवाज उठा रहे हैं तो सिविल सोसाइटी के लोग उठा रहे हैं, गवर्नमेंट खामोश बैठी हुई। बल्कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के लोग दे आर फ्यूलिंग दिस कंट्री, दे आर सेंडिंग देयर एम्युनिशन। तो इस पर बहुत ही जबरदस्त आपत्ति जिन्हें कल हमारी कन्वेंशन थी, बहुत ज्यादा इसके ऊपर में लोगों ने अफसोस का इजहार किया है, इसको कंडेम किया है और ये मुतालबा किया है कि यूनाइटेड नेशन ने जिस तरह से इस मामले में इसराइल को लताड़ा है और उनसे कहा है कि ये ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाई जाए, सीज फायर किया जाए, फौरन तौर पर लोगों के जो बंधक बनाया गया दोनों तरफ से उनको छोड़ा जाए और गजा को रेस्टोर किया जाए, उसको रीबिल्ड किया जाए। हम समझते हैं कि हमारे देश को जो यूक्रेन और रशिया के मामले में मध्यस्थता करने के लिए बार बार कोशिश करता है, उसे इसराइल और फिलिस्तीन के मामले में मध्यस्थता करनी चाहिए। और आप जानते हैं कि हमारा बहुत ही ट्रेडिशनल ताल्लुक रहा है फिलिस्तीन से। गांधी जी ने 1948 में ये बात कही थी कि जिस तरह ब्रिटेन ब्रिटिशर्स के लिए है, इसी तरह फिलिस्तीनियंस के लिए। और हमने 1992 तक के इसराइल को इस मुल्क का अपना दूतावास नहीं बनाने दिया, जबकि पीएलओ को हमने यहाँ पे कंसलेट बनाने की इजाजत दे दी। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस है। हमने उनके साथ सहानुभूति जताई है, जो लोग जिनको जो शहीद हो गए हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए परेशान हैं, और हमने ये अपील की है अपने देश से भी और उन तमाम देशों से भी कि वो इसमें मध्यस्थता करके इसको सीज फायर करवाएं और ये जेनोसाइड को रोकने की कोशिश। एक और अहम मसला हमने इसमें कल ज़ेर बहस लाया है। देखिए, हम जानते हैं ये जो रिलीजियस सैक्रेड पर्सनैलिटीज होती है, मुकद्दस शख्सियत होती है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, उससे लोग बेपनाह मोहब्बत करते हैं, अकीदत रखते हैं, अपनी जान माल इज्जत आबरू से ज्यादा उसको अजीज रखते हैं। लेकिन क्या बात है कि हमारे देश में एक लंबे अरसे से कुछ ऐसे शरपसंद अनासिर, ऐसे मिस्क्रिएंट बराबर जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वर्ड डेरिवेटरी अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, बहुत इंसल्टिंग वे में उनकी बात करते हैं और किसी के कान में जूं नहीं रही। आज वो सरेआम घूम रहे हैं मैदान, दे आर रोमिंग अराउंड, और अगर उसमें कोई प्रोटेस्ट करता है तो उनके खिलाफ जो है सेक्शन लगा गिरफ्तार कर दिया जाता है। तो ये बहुत गलत बात है, चाहे वो फैसिलिटी किसी भी धर्म की हो, वो हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो या मुस्लिम, उनको उनके बारे में अशब्द कहने की इजाजत किसी को नहीं मिलनी चाहिए। हमने ये मुतालबा किया है कल कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट से एक ब्लास्फेम के बारे में एक कानून लाए और ये फैसला करे कि किसी भी शख्सियत के बारे में, किसी भी धार्मिक पर्सनैलिटी के बारे में अगर इस तरह की कोई बात आएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई, और किसी को ये इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो इस तरह की हो। एक आखिरी बात हमने कल ये तय की है, कल इस पर ही हमने रेजोल्यूशन लाया है कि हमारे देश में बहुत लंबे अरसे से हमारी बहनों के साथ, हमारी महिलाओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है। रेप के वाकयात बढ़ते ही जा रहे हैं, यहां तक कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ
कलेक्टिव रेप हुआ है और उसके खिलाफ कोई सख्त काम नहीं। नरभैया के वाकये के बाद हमने एक वर्मा कमेटी बनाई थी, जस्टिस वर्मा कमेटी, और उसमें उसके रिकमेंडेशन की बुनियाद पर ये ऐसा समझा जा रहा था कि शायद आपके बात नहीं होगा, लेकिन ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ये महिलाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। हम यहाँ तो ये बात करते हैं कि 33% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उनको बराबरी मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन उनकी जो डिग्निटी है, उनकी जो चेस्टिटी है, उसको प्रिजर्व करने के लिए हमको कोशिश नहीं करते। हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है पूरे देश में, बहुत ही आपत्तिजनक है। कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता इस बात। तो हम ये कहना चाहते हैं हुकूमत से, और देखिए इस मामले में अगर हुकूमत ये तय कर ले, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इस तरह के जो कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन जो गवर्नमेंट बिल्किस बानो के का जो इज्तिमाई रेप हुआ है उसके दोषियों को जो है रिहा कर देती है, उससे क्या तवक्को की जा सकती है। बहरहाल ये 5-6 बड़े मुद्दे थे जो हमारे इस कन्वेंशन में बहस आए थे।